हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, ओली बोर्ड का एक लाइव मॉक आया है। 2 दिन के लिए है ये आज और कल के लिए है। तो वो वाला मॉक मैं आज देने वाला हूँ एसबीआई पीओ का। तो शुरू करता हूँ मैं। ये फ्री है, आप देख सकते हैं। कल शाम 7 बजे तक रहेगा ये। तो ये फ्री है सबके लिए, तो आप भी दीजिएगा। और हो सके तो पहले आप दे दीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा, है ना। तो थोड़ा कंपेयर करने में ठीक रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। ठीक है, एरर। आई ड्रीम ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ अफ्रीका वेयर इट इज लीडर्स कंबाइन इन देयर एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। वेयर बाय इट्स आएगा, ये इट्स की गलती है, तो ए बी में प्रॉब्लम है। ईच फंक्शन एम्ब्रेस 3 vertical columns, the center one on its own and the other two shared with the other function। देखो, ईच फंक्शन के बाद ये एम्ब्रेस का फॉर्म गलत है, एम्ब्रेसिस आएगा। द ज्यूरी are considering its verdict and we are waiting to see which side of the fence they will come down on। The jury are considering its verdict। The jury सिंगुलर क्यों नहीं ट्रीट कर रहे ये लोग। The jury is considering आएगा ए। Mark the option which contain the sentence which are grammatically incorrect। She gave a long disorganized speech that left everyone confused। ठीक है। The World Health Organization said the powder is okay for food। He is rich person whom owes nothing। ये सी में प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट पूछा है ना। He conspired against the king with his brother। I rarely see nobody at their place। हाँ, I rarely see anybody आएगा ना, nobody क्यों। My mother did not come yet from her office। My mother did not came yet। Did not come, ठीक है, did not come yet from her office। बी में तो प्रॉब्लम है। आई रेयरली सी एनीबडी, बी अकेला है नहीं तो सी है फिर। बी सी। कम येट येट ये कुछ सेंटेंस सही फॉर्म नहीं हुआ है। एक बार दे दें, फिर बाद में देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें, पर मुझे लग रही है दिक्कत उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में। आई डू नॉट ब्रॉट दिस मच एक्सपेंसिव परफ्यूम फॉर एनी वन बिफोर बट टुडे आई थॉट आई वुड मेक ए लिटिल चेंज। आई डू नॉट ब्रॉट दिस मच इन एक्सपेंसिव, आई डिड नॉट आएगा पहली बात तो। अच्छा, डिड नहीं है ऑप्शन में। आई हैव I haven't bring this many expensive perfume for anyone। I does not purchased that much नहीं। I haven't bring this, I has not नहीं। I have never ordered this much expensive perfume, हाँ ये ठीक लग रहा है। I do not brought का फॉर्म गलत है। Jill could not digest the fact that Jack's handwriting was more beautiful than her। more beautiful than her ठीक तो है। was more beautiful than hers, okay, हाँ, hers। more beautiful than her handwriting। most नहीं आएगा, most नहीं आएगा। more professional नहीं आएगा, hers आएगा। was more beautiful than hers, than her, than her handwriting होता तो ठीक रहता। handwriting नहीं लिखी है तो hers लगाना पड़ेगा। he was a most excellent speaker and told the gathering। he was a he was a most extreme in नहीं, he was most extreme in his, extreme नहीं, excellent। he was the most unique, most और unique साथ में नहीं आते। he was a unique orator and unabashedly told the gathering how he had found the local sheriff's office in disarray, ठीक है, बी ठीक है। But the area, which has been suffering from both an aging and shrinking population for decades, will soon welcome a bunch of vibrant young new residential।
हाँ, वेल विल सून वेलकम ए बंच ऑफ वाइब्रेंट यंग न्यू रेसिडेंशियल्स आना चाहिए था. Bunch of will soon include a new set of young and energetic occupants. Will soon be take नहीं, will soon lack नहीं, will soon filled with नहीं. यही है, पहला ही ठीक है. प्रॉब्लम क्या है इसमें लेकिन? will soon welcome a bunch of vibrant young new रेसिडेंशियल लोगों के लिए नहीं होना चाहिए. न्यू रेसिडेंशियल, यंग रेसिडेंशियल्स ऐस लगना था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है. There is an error in one of the part, which find out which part of the sentence has error. ठीक है. As part of the tour, the invitees will attend academic sessions and also visit places in and around Varanasi and Ayodhya, besides taken on a cruise on the Ganga. Besides taking आएगा. D में प्रॉब्लम है. During the night time, long wave radiations go up from the earth to the sky, and when the skies are clear, it leads long wave है, radiations है, तो it lead आएगा ना. It leads to something calling radioactive cooling. During the night time, the long wave radiations हैं, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आना था. लीड्स पे प्रॉब्लम है. इट लीड टू समथिंग कॉलिंग में भी दिक्कत लग रही मुझे. इट लीड्स टू समथिंग. लॉन्ग वेव रेडिएशन गो अप फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, एंड व्हेन द skies are clear, it leads to something called radioactive cooling. कॉलिंग में प्रॉब्लम है. ये फिर लीड किसके लिए लगाया है? स्काइस के लिए नहीं, स्काइस के लिए भी लगाते तो भी सिंगुलर. During the night time, long wave radiations go up from the earth to the sky, and when the skies are clear, it leads to something called radioactive cooling. मुझे कॉल्ड लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो मैं ई के साथ जाऊंगा. यहाँ पे कॉलिंग में प्रॉब्लम है. 10 क्वेश्चन है आरसी के. ओके, पीजे भी है. You are given the option which contain paired words that can or cannot fill the grammatically context. Identify the words that are opposite in meaning to each other and make the sentence correct. On dash winter morning, I like to have a dash cup of coffee. On cold winter mornings, hot. ठीक है, opposite भी हो गए cold और hot. While these raptors are not dash listed as endangered, are not currently, many protective dash still exist at the central level. Currently laws, many protective laws आएगा. Still exist. अच्छा, इसमें अपोजिट नहीं देना है ना. इसमें ठीक है. तो आर नॉट करंटली लिस्टेड, while many are not listed, many protective laws still exist at the. ठीक है, laws ये ठीक है. Clearly we have a dash in the labor exchange market that needs to be dash immediately. That needs to be fixed. Needs to be verb का थर्ड फॉर्म, तो फिक्स्ड ही है. वी हैव ए प्रॉब्लम इन द इतना मार्केट. ठीक है. मैनी इमिग्रेंट्स डोंट डैश फॉर ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस डैश बिकॉज दे डोंट हैव क्रेडिट हिस्ट्रीज. मैनी इमिग्रेंट्स डोंट अग्रीज. नहीं, अग्रीज नहीं, वर्ब फॉर्म गलत है. डू नॉट
डू नॉट है तो क्वालिफाई. मैनी इमिग्रेंट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस लोन बिकॉज दे डोंट हैव क्रेडिट हिस्ट्री. देखो ये मैंने ग्रामर से किया गाइस, है ना. डू के बाद हमेशा वर्ब जो आएगी वो बैर इन्फिनेटिव आती है. एस एस ये सब नहीं लगेगा. तो क्वालिफाई आ सकता है. अंडरस्टैंड्स नहीं आएगा, एस लगा हुआ है. रिकमेंडेड भी नहीं आएगा. सिंपल बैर इन्फिनेटिव वर्ब लगनी थी तो क्वालिफाई. अब हम करेंगे आर सी. ये तो पीछे है 21. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमल. ऑप्टिमल का मतलब होता है हल्का फुल्का, जरा सा, है ना. इज ऑप्टिमल ग्रोइंग ग्राउंड्स. ऑप्टिमल का अपोजिट जेंटल, एडवांस, अनफ्लो, रिग्रेस. रिग्रेस. सिनोनिम इंडिजिनस. सिनोनिम का इंडिजिनस मतलब देसी लोग, तो नेटिव हो सकता है. आउटसाइडर ये सब नहीं है. चलो ब्लैंक. monk fruit extract is dash available everywhere from big box stores like Walmart to Amazon, and it's included in hundreds of products. Is dash available is is commercially available. ठीक है, अब मुझे लगता है पढ़ना पड़ेगा. Monk fruit is indigenous to which of the following parts of the world? From outside, monk fruit looks like small, itna, no bigger than apple, but inside one of the world's best natural sweetener. This fruit indigenous to southern China and northern Thailand. Produce south or north? Southern China, northern Thailand. Only one. Thailand southern है ना, गलत है ये. इंडोनेशिया है नहीं. How did monk fruit make it to the big leagues in 1995? Produces natural sweetener with 0 calories, 0 sodium, 0 fat, falana dhimkana. Monk fruit has also long been used to treat illness across China. In itna, it made its way to when क्या ये Procter and Gamble, ये तो कंपनी का नाम है, patented a technique to produce sweeteners from the crop. टेक्निक टू ग्रो दिस. नहीं ग्रो नहीं है. पेटेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्वीटनर फ्रॉम क्रॉप. हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर monk fruit and where it was discovered? China, the main monk fruit exporter, banned the removal of itna. This restriction gave the country competitive edge and also itna. But monk fruit extract is a different story. The extract is also most popular promote from extract commercially available. हाँ ये रहा. Buddhist monk in southern China's Guli area were the first to discover in 13th century. Buddhist monk in Gulin. Buddhist monk in Thailand नहीं. Florist नहीं. जापान नहीं. यही है. Which of the following are the optimum condition for growth? Ideal sunlight, humidity, slope of mountains. This landscape with its dense deep mountains, ideal sunlight, okay, ideal 60 to 80% humidity, तो ये नहीं है. gentle slope, gentle slope भी नहीं है. steep बोला है ना, steep mountains यानी ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे. dense तो only one है. which of the following are true about how monk fruit taste? ओके, टेस्ट के बारे में तो बताया है क्या. monk believe these gods would guarantee long life. It is very unique taste. It is little bit sweet. It has very earthly taste. Sweet, sour, तीन है यार. ये स्वीटनर है तो स्वीट होगा ना, बिटर सोर तो होगा नहीं. Which of the following is not a nutritional property of monk fruit? 0 calorie तो है. This subtly sweet taste pairs with health promises like 0 calorie, 0 carbohydrates, 0 sugar, low glycemic properties. तो कौन सा? 0 प्रोटीन. ये नहीं है ना. ये अच्छा है वैसे फ्रूट डायबिटीज़ के लिए.
ज़ीरो कैलोरी, कार्ब्स भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, और ये लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी है, तो बहुत अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। व्हाट डिड मॉन्क बिलीव अबाउट द मॉन्क फ्रूट्स गारंटी लॉन्ग लाइफ? यहाँ ये तो लिखा हुआ ही था, मैंने पढ़ा था यहाँ पे। ये ना, दिस मॉन्क बिलीव दिस गार्ड्स वुड गारंटी लॉन्ग लाइफ। कमर्शियली हो गया, नेटिव हो गया, रिग्रेस हो गया, ओके हो गया ये तो अब हम पीछे करेंगे। ई यानी 5 तक है। It was very useful as it didn't need a source of ignition and it released a lot of energy. From its launch pads, both the world's first artificial satellite and the first human were launched. Yet it came to be dubbed Devil's Venom by scientists who used. Baikonur Cosmodrome in Russia is the world's oldest site for launching or um, receiving spacecraft. The fuel used by many of the rockets that blasted off Itna was this. तो डी से शुरू कर सकते हैं। डी, Baikonur Cosmodrome in Russia is the world's oldest site for launching or receiving spacecraft. The fuel used by many of the rockets, fuel की बात नहीं हुई है, the world's oldest site, it was very useful as it didn't need a source of ignition and it released a lot of energy. From its launch pad, both the world's first satellite, artificial satellite and first human, हाँ तो डी के बाद बी आना है, डी भी पैर है। The fuel used by many of the rockets that blasted off from Itna used UDMH. It was very useful as it didn't need any इतना, तो E और A पैर हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा फिर बचा है, A B C बचा है। Yet it came to be dubbed Devil's Venom by scientists who used it. तो ये कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, तो लास्ट में कर सकते हैं हम। तो DBEAC ये लग रहा है, ये बनाया है मैंने। अब एक बार मैं पूरा एक बार ढंग से पढ़ता हूँ। डी इतना in Russia is the world's oldest site for launching or receiving spacecraft. From its launch pad, both the world's first artificial satellite and first human space flight were launched. E. The fuel used by many of the rockets that blasted was UDMH. It was very useful as it didn't need a source of ignition and released a lot of energy. Yet it came to be dubbed as Devil's Venom by the scientists who used it. मुझे तो ये लग रहा है थर्ड सेंटेंस है ई। सही हो भगवान। Which of the following is the fifth sentence after rearrangement? 1 2 3 4 5, फिफ्थ यानी लास्ट सी। फर्स्ट है डी, फोर्थ है ए, सेकंड इज बी। हो गया, ठीक है। तो तीसों के तीसों हो गए। मैंने पीजे में कर तो दिया है, बनाया है मैंने DBEAC है। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा टाइम बचा है तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने ग्रामर के क्या किए हैं। गाइस काफ़ी कमेंट्स आए हैं लास्ट वीडियो में कि भाई इंग्लिश में आप कैसे करें, हम कैसे पढ़ाई करें। तो मैं उनको बता दूं गाइस कि आप है ना ग्रामर पे एक बार फोकस करिए, क्योंकि इस बार मैंने IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें RC जो आया था सिर्फ 2 RC थे और एक डुएबल था, एक थोड़ा ठीक ठाक था। तो बाकी सारे क्वेश्चन वैसे थे, ब्लैंक्स रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन इजी थे वो भी, लेकिन मुझे वो ज़्यादा प्रपोर्शन जो है ना ग्रामर का ज़्यादा लगा इस बार IBPS PO मेंस में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन करना समझना मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो RC में आते हैं। लेकिन RC 2 पूछे थे इन्होंने इस बार, ज़्यादा नहीं पूछे थे, नहीं तो इनका ट्रेंड रहता था कि
छोटे छोटे आरसी बहुत सारे पूछते थे मेंस में। तो आपको ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी तब। तब आपको कैसे आपको समझ में आ रहा है पैसेज, वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। लेकिन इस बार ग्रामर की काफ़ी हेल्प लग रही थी, है ना। तो एक बार आप ग्रामर का कोर्स पूरा कर लीजिए कहीं से भी, कोई भी टीचर से, और फिर आप, है ना, प्रैक्टिस करिए मॉक से। जितने आप मॉक्स देंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, आपकी इंग्लिश साफ होगी, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है ये। तो जितना आप पढ़ेंगे, तो मॉक लगाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, है ना। और मेरा तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन बीटेक के बाद, बीटेक के दौरान ही मुझे फिर हिंदी में आना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी दोस्त लोग सब हिंदी ही बोलते हैं। तो स्कूल तक तो इंग्लिश में बात करता था मैं। मेरा मतलब स्कूल तक काफ़ी मेरी स्पोकन इंग्लिश अच्छी थी। और इवन कोई मीनिंग भी पूछता था कोई वर्ड का, तो वो मीनिंग का भी आंसर मैं इंग्लिश का ही कोई दूसरा वर्ड देता था, ऐसा था। लेकिन फिर अब बीटेक एमटेक करी तो फिर सारा रायता फैल गया, मतलब सब देसी हो गए फिर, है ना, हिंदी में ही आ गए सब। तो ऐसे आप धीरे धीरे करो, पहले एक बार आप ग्रामर पूरा कर लो, और फिर आप मॉक्स देते रहो, मॉक दो जितने दे सको, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो कौन शुरू करते हैं हम? 12 यानी 120। तो 2 6 6 2 12 5 2 10, 12 और 10, नहीं 15 और 8 23। तो -15 और -8, और ये है 136, यानी 9 10, तो 2 से काटा 7, 6 से 12, 2 8, 8 68, तो 17 4 जा और 2 8, तो 17 और 8, तो ये भी माइनस में रहेंगे, और यहाँ पे 10 लगेगा। तो a इज़ ग्रेटर देन 36, 9 4 जा, तो +9 +4, और 20, 200 है, तो 20 इंटू 10, 20 और 10 दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो 20 दोनों से बड़ा है, 10 दोनों से बड़ा है, तो y इज़ ग्रेटर देन 95, 19 और 5, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो सी एन डी आएगा। 90, 10 और 9 नहीं हो रहा, तो 3 3 5 2, 15 और 6 हो रहा होगा। 15 और 6 +15 -6, तो -15 और +6, 13 इंटू 20, 33, तो -13 और -20, और इसमें 9 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 117 माइनस और -180, तो ऑफ कोर्स x इज ग्रेटर देन y। (170) और 225, 395 minus x is equal to 2/5 और 1 with 30, 30 into 2 60 plus 40 100, तो 295। ये होता है 729 होता है, 9 का क्यूब होता है, तो 9 माइनस 8 4 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 17। तो 9 में से 4 गया 5, 5 यहाँ गया 12, 12 तो 4 20, 32 इंटू 4 128, प्लस 441 होता है 21, प्लस 400 होता है 20, तो ये हो गया आपका 41, ऐड करो 169, 13 का होता है। मिसिंग। 187 यानी 15 16, तो 7 से जाएगा 14, 47 नहीं, 9 से नहीं, 11 से जाएगा ना, 11 एक कम 11 सत्ते, तो 11 11 और 17 माइनस में आएंगे दोनों। फिर आपके 176, ये भी 11 से जाएगा,
11 वन ज़ा 11, 11 सिक्स ज़ा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, -16 प्लस 11, तो 16 तो प्लस में -11 इक्वल, एंड y इज इक्वल और ग्रेटर। मिसिंग, ओके, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 7 3 5 इंटू 9 5 4 27, और एक 15 आना है लास्ट में, अरे राम, दो में है, 5 4 27, 27 और 4 31 63, तो 6615, 12 24 40 80 96 192 डैश, तो 12 16 40 16 4 2 8 9 98, ये तो नहीं आया समझ में मुझे, क्या कर रहा है ये। इंटू टू किया, 4 10 सा 4 6 सा 2 5 सा 2 3 सा 5/3 इंटू 2 अगेन 5/3, नहीं मुझे नहीं आ रहा समझ में ये अभी, 12982-15626, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, तो 149, 3 5 7 16 इंटू 16 प्लस 1 करूँ तो 12, और 48 49 50 51 5 13 1313, नहीं आ रहा, हटाओ। 1604 875 632 551 डैश 551 515 512 87559, 9 में से 2 गया 2, और यहाँ 7 5 तो 2, 729 632 यानी 3 4 243, और ये है 551158 81, तो ये 9 का स्क्वायर, 9 का, अच्छा 27 इंटू 9 है ये, और ये 9 इंटू 9 है, और ये 27 इंटू 7 करना है, इंटू 3 करना है, इंटू 3 इंटू 3 27, 12 3 5 532, ये थोड़ा चमक तो रहा है पर अभी पूरी तरह चमका नहीं है मुझे, 3 है या 81 आ रहा है गैप, तो डिवाइड बाई 3 27 माना 3 और एक 4 2 524 524, ठीक है, अब डी आई करो। नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल सोल्ड मंडे ट्यूसडे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ऑन मंडे टू द नंबर ऑफ टेबल सोल्ड ऑन ट्यूसडे। मंडे को चेयर यानी ब्लू, यानी यह है 30, और टेबल ट्यूसडे को 30 और 45 मान लूँ क्या, हाँ 30 45 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा 2:3। एवरेज नंबर ऑफ टोटल चेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे 6000, यानी 12000 है सैटरडे और फ्राइडे को, यहाँ पे डेटा दिया है फ्राइडे तक का। फ्राइडे को कितनी है चेयर्स, फ्राइडे को चेयर्स हैं 75,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार यानी 1000 डिवाइड बाई 4, 250, 250, 250, 507, हाँ तो ठीक तो है। तो मैं सही देख रहा हूँ चेयर का? हाँ, तो 75 है फ्राइडे को, 7500। सही देख रहा था। 12,005, 3 और 1 4, 4500। तो ठीक है ये 45। टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ऑन थर्सडे, chair on Thursday, that is 55, is what percent more than total number of tables sold on same day? टेबल है 40, तो 50 15 ज़्यादा है 40 से। 225, 75 बाई 235 और 237 पॉइंट समथिंग। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओहो, तो 45 प्लस 40 85, और वेडनेसडे को हैं आपके 70 और ये 250 और जरूर, तो 3250, तो ये 10250। और वहाँ कितने कर लिए थे मैंने? 70 और कहाँ गया 55, 5075, 15 गलती कर दी है। 10250 और वेट ट्यूसडे का पूछा है 4500 और 400। 18750। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 30% लेस देन चेयर, ठीक है। 7 और 10 टेबल और चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर इज 500। इंटू 50 तो 350। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को टेबल है 2000 इंटू 350 यानी 70,000, ये 7 लाख। डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल सोल्ड ऑन ऑल डेज। भाई साहब, इसमें है आपका 1000 का प्लस है, फिर इसमें 500 का माइनस है, इसमें आपका 1000 2000 3000। बीच में दिए हुए हैं ना, गलत है ये सब। ये बाद में करूँगा, ये कैलकुलेटिव है बहुत। The school each class is divided into 3 section A, B, C, ठीक है। Following table represents the number of students in class 8, 9, 10th, 11, 12th, 8, 9, 10, 11, 12th. Number of percentage of student in section A, B, C out of the total number of student in the respective class, ठीक है। How many students are there in section B of 8, 9, 10? 8, 9, 10। ओके, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। ए बी सी, बी में तो है 35% ऑफ ये, यानी 7/20 ऑफ 120, 42 है। और इसमें है आपके 60, तो 40% इज़ 34, तो 100% कितना हुआ? 2 2 17 2 5, तो 85 हुए टोटल 9 में। तो 85 का 20% 5 यानी 17। और सी का पूछ रहा है ना मुझसे 10 का, 10 में टोटल 75 हैं, तो ये हो गया। ये क्या नौटंकी है, 10 इधर दे दिया तो 65 बचा। तो ओके ओके, ठीक है। 40% ये तो 60% यानी 3/5 ऑफ 75।
15 यानी 45 टोटल होने चाहिए थे, उसमें 10 इधर हैं तो 35 इधर हैं। ठीक है, तो एवरेज पूछ रहा है मुझसे, व्हाट आर द टोटल स्टूडेंट। ओके, तो 12 13 14, 4 4 8 और एक 9, 94। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th और 12th। हाँ, 11th एंड 12th आर इन सेक्शन ए। ठीक है, 12th में है 140, इसमें है 65, इसमें 4, 70 का था 35, तो ये हो गया 90 100, तो यहाँ 40 है। और इनका मैं देख लेता हूँ, यहाँ 26 है, तो ये कितना है 40 60 और 14 74%। तो 6 80 26% इज 20, तो ये 74 है, तो 46 और ये 28। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th टुगेदर आर इन सेक्शन ए। 13 8 9 93 हैं। और यहाँ पे कितने होंगे, 6 6 12 12, 40 80 80 एंड 12 92 एंड 8 दैट इज़ 100। तो 240 का कितना परसेंट है ऐसा पूछ रहा है। तो 2 से गया 12, 2 से गया 5, तो ये हो गया आपका 450 और 15 465 डिवाइड बाई 12, 12 4 ज़ा 48, तो 3 लेना पड़ेगा, 36 105। 12 9 12 8 ज़ा तो नहीं ले सकते, 12 8 से ही लेना पड़ेगा, 12 9 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा ये। इफ़ द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 11th इज़ 1:4, नहीं ये 8 9th है 1:4, यानी 5 17 और 68। एंड देयर आर 28 गर्ल्स इन सेक्शन सी इन सेम क्लास। 28 गर्ल्स हैं, 2/5 34 68 और 17 5 7। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हैं ये पूछ रहा है। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन सेक्शन ए एंड बी टुगेदर। अच्छा अच्छा अच्छा, 40 हैं और क्या। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी सी टुगेदर इन 8 बी सी। ये 42 है, ये 40% यानी 48, यानी 80 90, तो यही हो गया, तो ये 30, तो ये हो गया 72। और डेट ऑफ क्लास 12th में है 100, 36 250 225 2 18 18 गलत हो रहा है कुछ। क्लास रेशियो नंबर बी सी पूछा है, अच्छा अच्छा, तो 80 90 और यहाँ पर है 75, 5 2 ज़ा 5 15 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 6:5। How many more or less number of students are there in section A in class 8 compared to section B in class 10? 5 कम है। Average number of student in class is 90। ये 7th का है और ये किसका है, 9th का है। 90 यानी 180, 180 में से 85 गया, 5 7 2 95 उधर हैं 7th में। एंड 25% ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 7th आर इन सेक्शन। 25% यानी 4, नहीं ये आधा नहीं होगा मुझसे, तो ये रहने दो। अब हम करते हैं अरिथमेटिक थोड़े बहुत जो बचे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इतना क्रॉस इतना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 50 सेकेंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। 1144 22 ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 50 सेकेंड
is equal to the length of the platform. 4 2 5 52 तो 0 10 25 1 2600. A boy crosses the same platform in अरे यार in 17 minutes 20 seconds. Speed of the boy 17 मिनट 17 इंटू 60 कर लो तो 60 40 102 0 और 1040 2 से 130 52 4 तो ढाई है ढाई ये कर लिया. अब 33 सेकंड हैं तो ये कौन सा है ये नहीं ये छोड़ दिया मैंने ना कैलकुलेट करना पड़ रहा था बार बार. हालांकि एग्ज़ाम में तो कर ही दूंगा मैं पर यहाँ पे अभी मन नहीं कर रहा. अनुपम कैन कंप्लीट द पीरियड 64 days and Anupam is 50% more 3:2. In how many days Kiran can together 2 6 360 plus 20 oh ho 384 38.4 आना था उसका आंसर. रीजनिंग 8 पीपल 2 डेट हैं 4 महीने होने चाहिए ठीक है 5 तक होगा 5 8 1 4 9 6 7 2 4 7 9. How many such days are there now? Remain at the same position when they are arranged in ascending order from left to right. Okay 1 2 3 है नहीं 4 2 है 5 1 है 6 7 8 7 2 है 8 और 9 भी 2 है. रिमेन द सेम पोजीशन 1 4 2 3 तो 1 2 3 4 7 person regular इतना इतना not less than 1 and not more than 3 applied for each category. Okay we'll do this afterwards. 3 3 6 7 8 people are in same order square table such that 4 are ठीक है square based है ये सिंगुलर है सिंगल क्वेश्चन है नहीं करेंगे इसको मार्क फॉर रिव्यू. रोहित starts his journey by walk. He walks 10 meter towards north. Okay A गया from point A to reach point B. Okay from B he takes a right and walks 8 to reach C. ठीक है he takes a left turn from C and walks 9 to D. He takes a left turn from D and walks 8 to reach E. Finally he takes a left turn and walks 4 to F. Okay shortest distance F and B 5. What is the direction C with respect to D? C and D. C is south. 4 are alike. Okay EC साउथ वेस्ट है CE ये उल्टा हो गया BD BD आपका नॉर्थ वेस्ट है AB स्ट्रेट लाइन में है CA भी नॉर्थ वेस्ट है ये स्ट्रेट लाइन है AB. Certain number of people are sitting in a straight or 2 person are sitting between F and I. Okay 3 क्वेश्चन है तो इजी होना चाहिए. F 1 2 2 person are sitting F and I. Okay तो F I 2 एक दूसरा केस ये 3 person sit with Q and G 5 person sit to the right of F 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 और 2 5 ठीक है. I sit second to the left of G. More than 15% are there ठीक है. The number of persons sitting to the left of X is same as number on right of C. 5 persons sitting Q and X who sits second from one of the end. X second है
ओके, अगर x को यहाँ लेता हूँ मैं तो 5% सिट बिटवीन q एंड x, 1 2 3 4 5, q यहाँ आ गया और q और g के बीच में 3 है, 1 2 3, गलत ले लिए, 1 2 3 g, 1 2 3 g, मोर देन 15, ठीक है। आई सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, हाँ ये केस बन रहा है, ठीक है। जी, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज सेम एज नंबर ऑफ राइट ऑफ सी, तो सी को कहाँ से लेंगे? कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो नहीं। ओके जी, जी और क्यू में 3 है, 1 2 3, क्यू more than the number of persons sitting to left of x is same as the right of c, 5% q and x who sits second, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अगर मैं यहाँ पे एक और कर दूँ c, अब सही बैठेगा। तो आई सिट एग्जैक्टली बिटवीन, एक तो जी एफ, नहीं है जी एफ, हटाओ, ये नहीं बन रही है, इसको दोबारा देखेंगे। आर से एच, आर से पी जाओगे आप, पी से कहीं जा सकते हो आप? नहीं। पी से एम, पी से आर कहीं नहीं जा सकते आप, पी आर, एम इधर है, आर कहीं और नीदर है भैया, ये इसका आंसर नीदर। ए से बी, ए से ओ एफ एम टी, एफ से बी चले जाओगे, ठीक है। एक्स से एफ, एक्स से टी, टी से एम, नहीं एफ नहीं जा सकते, ओनली वन फॉलोज। एस से वाई, एस से के डब्ल्यू जेड पी, वाई के लिए जेड, जेड से वाई जा सकते हो आप, और सारे इक्वल साइन है क्या? एस से जेड, जेड से, ठीक है, हाँ सही है। जे से आई, जे किधर है? जे से बी, बी से जेड, जेड से आई, हाँ तो बोथ फॉलोज। डी से वी, डी से सी जाओ, डी वी ई, नहीं पहला गलत है। सी से ई, सी से डी, कोई भी नहीं हो रहा है तो। डी सी इक्वल है तो डी से ई, नहीं नीदर है। वी से आर, वी किधर है? वी, वी से ओ जेड एल, जेड से एस, एस से आर, ठीक है इधर आएगा इसमें। 6 मेंबर वाले बाद में भैया, ये भी एक पजल है, तीन क्वेश्चन है इसके बाद में। चलो अब हम पजल करते हैं पहली। 8 पीपल, अप्रैल जून सितंबर, ओके। तो 19 26 19 26 19 26 19 26, अप्रैल जून सितंबर अक्टूबर। जून होता है 30 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी होता है 30 का, जुलाई अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31। जी वॉज बॉर्न इन ए मंथ विच हैज़ 31 डेज, तो जी यहाँ पे या जी यहाँ पे। एल वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, एल सितंबर में नहीं है। वी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई,
4 पर्सन जी एन आई, 1 2 3 4 आई एंड आई। एफ इज द यंगेस्ट पर्सन, एफ यहाँ आ गया। एटलीस्ट 5 पर्सन वर बोर्न आफ्टर वी, 1 2 3 4 5। वी यहाँ आ सकता है या फिर वी यहाँ। वी के जस्ट नीचे ई है तो यही केस बनेगा। एल सितंबर में नहीं है तो यहाँ सितंबर है तो एल ऊपर आएगा। एन इज द सेम, क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर ई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एन, तो बचा जो यहाँ पर आ जाएगा। ई वॉज बॉर्न, ओके, ई वॉज बॉर्न ऑन 30 जून, मतलब 26 जून। बॉर्न बिटवीन आई एंड एफ, आई यहाँ पर 1 2 3 4 5। हु वॉज बॉर्न, नॉट बॉर्न आफ्टर वी। एन, एन तो बॉर्न हुआ है, आई नहीं हुआ है, के हुआ है, जी हुआ है, एफ भी हुआ है, हाँ तो आई नहीं हुआ है। एल, एल आपका 19 है, वी आपका 19 है, एन आपका 19 है, ई आपका 26 है, एफ आपका 26 है। एफ 31 वाले पे है, बाकी सब 30 पर है। हु एल्डेस्ट अमंग ऑल, तो एल है, हो गया ये। रेगुलर, पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी एंड एम्प्लॉई, इस टाइप की मेंस में आई थी नंबर के साथ। नॉट लेस देन 1 एंड नॉट मोर देन 3, कितने लोग हैं, 3 और 3 6 और 7 लोग हैं। एम एन ओ अप्लाइड इन द सेम कैटेगरी बट नीदर एज पॉलिसी होल्डर नॉर विद एन, ओके, तो एम ओ और एम ओ के साथ एन नहीं आएगा, ठीक है। के अप्लाइड एज पॉलिसी होल्डर बट नीदर विद एन नॉर विद क्यू, तो एन यहाँ नहीं आएगा तो एन यहाँ आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ आएगा। क्यू अभी यहाँ पे नहीं आ सकता पॉलिसी के साथ। एल नीदर अप्लाइड विद एन नॉर एज रेगुलर इन्वेस्टर, तो एल नीदर अप्लाइड विद एन नॉर एज ए रेगुलर इन्वेस्टर। एल के दो केस बनेंगे यहाँ पे, एन के एम ओ, एक में एल इधर, एक में एल इधर। नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड एज पॉलिसी होल्डर आर 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड एज एम्प्लॉई, तो यहाँ पर ये एक और आना चाहिए। 3 2 5 6 7, ठीक है। तो इस केस में क्या था, एल नीदर अप्लाइड विद एन नॉर विद रेगुलर इन्वेस्टर, के अप्लाइड एज, तो क्यू यहाँ नहीं है तो क्यू यहाँ आएगा। और नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड पॉलिसी होल्डर आर 2 मोर देन द नंबर ऑफ अप्लाइड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एक और आना है। 3 3 6, कौन सा बचा है, के एल एम, एल भी हो गया, एम एन एन ओ पी बचा है ना, पी आ गया, ओके बन गया। होम ऑन द फॉलोइंग अप्लाइड द सेम कैटेगरी एज पी, के और एल। होम ऑन द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एन एज इन द सेम वे क्यू इज रिलेटेड टू एम, क्यू और एम साथ में है तो एल के एन के साथ कोई भी नहीं है, नन। अरे यार, इफ ए बी अप्लाइड एज रेगुलर इन्वेस्टर एच आई पॉलिसी whereas x y z apply, which then among the following is true, giving the designation of is higher than regular and lower than employee. Only 6% rank higher than Q. Policy is higher than regular and lower than employee, and
पॉलिसी में कितने हैं, के एल पी, और आर में है एम ओ क्यू। ए बी रेगुलर में घुसे हैं तो ए और बी इधर, एच आई पॉलिसी में, एच आई इसमें, और एक्स वाई जेड एम्प्लॉय में, एक्स वाई जेड। अब पूछ भाई, ओनली 6% रैंक हायर देन क्यू, 1 2, नहीं 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 नहीं, ज़्यादा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अप्लाई, कौन सा ट्रू पूछ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अप्लाइड फॉर आईपीओ शेयर आर लेस देन नंबर ऑफ रेगुलर। हाँ हाँ। एच एल रैंक लोअर देन एम जेड, नहीं। 4% अप्लाइड एज रेगुलर इन्वेस्टर, 5 हैं, 5 हैं, तो ये गलत है, बी सही है मेरे ख्याल से। बहुत बेकार था वो क्वेश्चन। के अप्लाइड इन विच कैटेगरी, के अप्लाइड इन पॉलिसी, इन द सेम कैटेगरी एज एन, नहीं, तो ओनली बी है। हाउ मेनी टोटल पर्सन अप्लाइड इन एम्प्लॉय एंड रेगुलर इन्वेस्टर, एम्प्लॉय में तो 1 है, रेगुलर में 3 है, 4 है टोटल। यार ये डेटा गलत ना बनी हो भगवान। ओके, 8 पर्सन, 4 sit at the corner of the table while 4 sit at the middle of the one who sit at the 4 corner face inside। ठीक है, कॉर्नर वाले अंदर हैं, 1 2 3 4, मिडल वाले बाहर होंगे। 2 केस बना लेता हूँ। The one who while those who sit middle face outside, ठीक है। 2 person are sitting between R and T, Q is facing outside, okay, and sit second to left of T। और 2 लोग हैं R, T और R, तो R इधर, एक तो R इधर। O sit second to left of R। M sit third to right of O, 1 2 3 M, 1 2 3 M। S is neighbor of M, S is neighbor of M। N is third to right of P। बन गया। P who is facing inside, oh god। N is third to right of P, 1 2 3। Who is facing inside, नहीं बना, डायरेक्शन गलत बैठ रही है। अरे यार वापस चेक करो। 2% सिर्फ आर एंड टी, एक तो आर, एक तो आर। Q is facing outside and sits second to left of T, first second। एक तो R, एक तो R। Q is facing O is second to left of R, 1 2 1 2। M is third to right of O, 1 2 3 M, 1 2 3 M। N is third to right of P, N। S is neighbor of M। Who is facing inside, inside है, क्या गलत तो नहीं कर लिया मैंने। The four is the middle, the one who sit at the corner face inside, हाँ सही तो है। Who is not facing center, P O अंदर है, N अंदर है, R अंदर है, S अंदर है, तो P अंदर नहीं है। यहाँ मुझे लगता है क्वेश्चन में गलती तो नहीं है। N is third to right of P who is facing inside, देखते हैं। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, 1 2 3 Q। whom the following is exactly neighbor of neighboring position of both M and T, S। which of the following is neighbor of Q, N और O।
ऑप्शन तो सारे मिल रहे हैं। हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एम? 1 2 3 4 17, यानी ये बन तो गई है गाइस, पर इसमें एक कंडीशन मैच नहीं हुई है, ये वाली P who is facing inside। corner face inside while those who sit in the middle face outside। 2 person R and T, R and T में दो हैं, ठीक है। Q is facing outside and sits second to left of T। O is second to left of R, 1 to O। M is third to right of O, 1 2 3। S is the neighbor of M, ठीक है। N is third to right of P। ओ गलत कर दिया, P इधर आएगा और N इधर आएगा। ओके ओके ओके, N आएगा इसका आंसर, N। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, 1 2 3 Q, ठीक है। एम टी के बीच में S है, नेबरिंग Q P O, और एम एन राइट ऑफ एम, एक। हाँ सही हो गया। ओह सबमिट हुआ गाइस, देखते हैं क्या स्कोर आ रहा है। ओके तो हाँ, इंग्लिश में मैंने 30 कर दिए थे तो एक गलत हो गया है उसमें ना, तो स्कोर 28 है। क्वांट में मैंने 21 किए थे तो 21 सही है, तो स्कोर मेरा 21 है। और रीजनिंग में 24 किए थे, एक गलत हो गया है, तो और 22.75 मार्क्स हैं। तो ओवरऑल जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं 72.50। अटेम्प्ट किए थे मैंने 75, है ना, तो दो गलत हो गए हैं अभी अभी। वो कल शाम को पता चलेगा कौन से गलत हुए हैं ना। तो ये ओली बोर्ड का लाइव मॉक था, 2 दिन के लिए है, आज और कल शाम के 7 बजे तक है कल। तो आप ये दीजिएगा मॉक, जिसने दिया ना हो, और फ्री है सबके लिए, है ना। तो आप एक बार एग्ज़ाम दे दीजिए ये वाला, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखना, है ना। जो आपने मॉक दिया है वो आप एक बार दे लो, फिर आप ये देखना, है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसकी, तो वहाँ पे मैं मेंस के कंटेंट अपलोड करता हूँ गाइस। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।